Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I'm your class 11 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सपैंड द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x एंड पार्ट 1 इज x square plus x minus 1 raised to the power 3। अब हमने x square plus x minus 1 raised to the power 3 को एक्सपैंड करना है by using the binomial theorem और रिजल्ट में हमारे पास डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x आनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लिख लेते हैं। a plus x raised to the power n, this is equal to n c0 into a raised to the power n plus n c1 into a raised to the power n minus 1 into x plus n c2 into a raised to the power n minus 2 into x square plus up to plus n cr minus 1 into a raised to the power n minus r minus 1 into x raised to the power r minus 1 plus n cr into a raised to the power n minus r into x raised to the power r plus up to n cn minus 1 into a into x raised to the power n minus 1 plus n cn into x raised to the power n. This rule of expansion is called the binomial theorem. अब हमने एक्सपेंशन करनी है x square plus x minus 1 raised to the power 3 की। तो यहाँ पे ये जो x minus 1 है इसको हम पुट कर देंगे a के इक्वल। पुट x minus 1 is equal to a। तो हमारे पास अब आ जाएगा x square plus a raised to the power 3। अब हम करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। दिस इज इक्वल टू 3c0 इंटू एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3 प्लस 3c1 इंटू एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2 इंटू a प्लस 3c2 इंटू एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर 1 इंटू a रेज़ टू द पावर 2 प्लस 3c3 into a raised to the power 3. This is equal to 3c0 is 1, तो यहाँ पे आ जाएगा x raised to the power 6 plus 3c1 is 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 into x raised to the power 4 into a plus 3c2 is 3, देन आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस 3c3 इज 1, तो यहाँ पे आ जाएगा a क्यूब। अब हमने x माइनस 1 को a के इक्वल सपोज किया है, तो अब a की जगह अगेन पुट कर देंगे x माइनस 1। पुटिंग बैक x minus 1 is equal to a, we get x square plus x minus 1 raised to the power 3. This is equal to x raised to the power 6 plus 3 into x raised to the power 4 into x minus 1 plus 3x square into x minus 1 raised to the power 2 plus x minus 1 raised to the power 3। अब यहाँ पे ये जो x minus 1 raised to the power 2 है एंड x minus 1 raised to the power 3 है, इनको हम डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से इनको एक्सपैंड करेंगे। हमारे पास आ जाएगा x raised to the power 6 plus 3 into x raised to the power 4 into x minus 1 plus 3x square into 2c0 into x
raised to the power 2 plus 2c1 into x raised to the power 1 into minus 1 plus 2c2 into minus 1 raised to the power 2. Then आ जाएगा plus 3c0 into x raised to the power 3 plus 3c1 into x raised to the power 2 into minus 1 plus 3c2 into x into minus 1 raised to the power 2 plus 3c3 into minus 1 raised to the power 3. This is equal to x raised to the power 6 plus 3 into x raised to the power 4 into x minus 1 plus 3x square into 2c0 is 1, तो यहाँ पे आ जाएगा x square, then आ जाएगा minus 2c1 is 2, तो यहाँ पे आ गया है 2x and 2c2 is 1, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा plus 1, then आ जाएगा plus x cube minus 3x square plus 3x minus 1. This is equal to x raised to the power 6 plus 3 into x raised to the power 5 minus 3 into x raised to the power 4 plus 3 into x raised to the power 4 minus 6 into x raised to the power 3 plus 3 into x raised to the power 2 plus x raised to the power 3 minus 3 into x raised to the power 2 plus 3 into x minus 1. This is equal to, सबसे पहले आ जाएगा x raised to the power 6, then आ जाएगा plus 3 into x raised to the power 5 minus 3 into x raised to the power 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 3 into x raised to the power 4 के साथ minus 6 x cube plus x cube is minus 5 x cube, 3x square minus 3x square के साथ हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा 3x minus 1. So this is our final and required result. Next है हमारे पास part 2, x minus 1 over x raised to the power 3. अब इसका सॉल्यूशन करते हैं. तो यहाँ पे ये जो x minus 1 है इसको हम पुट कर देंगे a के इक्वल. पुट x minus 1 is equal to a, तो हमारे पास आ जाएगा a minus 1 over x raised to the power 3. This is equal to 3c0 into a raised to the power 3 plus 3c1 into a raised to the power 2 into minus 1 over x plus 3c2 into a into minus 1 over x raised to the power 2 plus 3c3 into minus 1 over x raised to the power 3. This is equal to a cube plus 3a square into minus 1 over x plus 3a into 1 over x square plus into minus 1 over x cube. This is equal to a cube minus 3a square over x plus 3a over x square minus 1 over x cube. Putting back x minus 1 is equal to a, we get x minus 1 over x raised to the power 3. This is equal to x minus 1 raised to the power 3 minus 3 into x minus 1 raised to the power 2 over x plus 3 into x minus 1 over x square minus 1 over x cube. हमने प्रीवियस क्वेश्चन में x minus 1 raised to the power 3 and x minus 1
रेज़ टू द पावर 2 को फाइंड कर लिया था बाय यूजिंग द बायनोमियल थ्योरम। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली जो रिजल्ट आया था वही लिख देते हैं। x माइनस 1 रेज़ टू द पावर 3 इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 माइनस 3 इंटू x माइनस 1 रेज़ टू द पावर 2 इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ओवर x प्लस 3 इंटू x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x क्यूब। This is equal to x cube minus 3x square plus 3x minus 1 minus 3x square over x plus 6x over x minus 3 over x plus 3x over x square minus 3 over x square minus 1 over x cube. This is equal to x cube minus 3x square plus 3x minus 1 minus 3। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास बेस सेम है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा x रेज़ टू द पावर 2 माइनस 1, देन आ जाएगा प्लस, यहाँ पे x के साथ हो जाएगा कैंसिल, देन आ जाएगा माइनस 3 ओवर x, देन आ जाएगा प्लस 3 ओवर x रेज़ टू द पावर 2 माइनस 1, देन आ जाएगा माइनस 3 ओवर x स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 माइनस 3x प्लस 6 माइनस 3 ओवर x प्लस 3 ओवर x माइनस 3 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x क्यूब। 3x माइनस 3x के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 ओवर x के साथ कैंसिल हो जाएगा, और अब हमारे पास आएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, 6 माइनस 1 इज 5, देन आ जाएगा माइनस 3 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x क्यूब। So this is our final and required result, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग पार्ट 1 इज x रेज़ टू द पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 माइनस 2x रेज़ टू द पावर 7। 3 माइनस 2x रेज़ टू द पावर 7 के एक्सपेंशन में जिस टर्म में x रेज़ टू द पावर 4 आ रहा है, हमने वो टर्म को अब यहाँ फाइंड करना है। एक बायनोमियल एक्सपेंशन में जो जनरल टर्म होती है उसको यूजुअली डोनेट किया जाता है टी आर प्लस 1 के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू एन सी आर इंटू ए रेज़ टू द पावर एन माइनस आर इंटू बी रेज़ टू द पावर आर। और यहाँ पे हमारे पास जो n है वो है 7 के इक्वल, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू minus 2x. Here n is equal to 7, a is equal to 3 and b is equal to minus 2x. तो हमारे पास t r plus 1 आ जाएगा 7 c r into 3 raised to the power 7 minus r into minus 2x raised to the power r. अब हमने ऐसी टर्म फाइंड करनी है जिसमें x रेज़ टू द पावर 4 इन्वॉल्व हो रहा हो। तो यहाँ पे अगर माइनस 2x की पावर में 4 आ जाए देन हमारे पास वो टर्म आ जाएगी जिसमें x रेज़ टू द पावर 4 इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसका मतलब ये है, ये जो r है इसको पुट करेंगे 4 के इक्वल, पुटिंग r इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास अब आ जाएगा t, 4 प्लस 1 इज 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 एंड दिस इज इक्वल टू 7 c4 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 7 माइनस 4 इंटू माइनस 2x रेज़ टू द पावर 4। देन आ जाएगा t5, दिस इज इक्वल टू 7c4 की जगह आ जाएगा
7 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, देन आ जाएगा इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3 इंटू माइनस 2x रेज़ टू द पावर 4। T5 इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल इज 6, तो 3 फैक्टोरियल 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इंटू 27 इंटू 16x रेज़ टू द पावर 4। T5 is equal to 35 into 27 into 16 into x raised to the power 4. T5 is equal to 15,120 into x raised to the power 4. तो यहाँ पे फिफ्थ टर्म है जिसमें x raised to the power 4 इन्वॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2। पार्ट 2 में हमने जो टर्म फाइंड करनी है वो है x रेज़ टू द पावर -2 इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2 ओवर x स्क्वायर रेज़ टू द पावर 13। सॉल्यूशन, we know that TR plus 1 is equal to NCR into A raised to the power n minus R into B raised to the power R। अब यहाँ पे n है हमारे पास 13 के इक्वल, A is equal to x and B is equal to -2 over x square। Here n is equal to 13, A is equal to x and B is equal to -2 over x square। तो अब हमारे पास TR plus 1 आ जाएगा 13CR into x raised to the power 13 minus R into -2 over x square raised to the power R। TR plus 1 is equal to 13CR into x raised to the power 13 minus R into -2, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो एक्स स्क्वायर है अगर इसको न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x रेज़ टू द पावर -2 और इस पूरे की पावर है r। TR plus 1 दिस इज इक्वल टू 13CR इंटू x रेज़ टू द पावर 13 माइनस R इंटू -2 रेज़ टू द पावर R इंटू x रेज़ टू द पावर -2R। देन आ जाएगा TR plus 1 दिस इज इक्वल टू 13CR। अब यहाँ पे देखा जा सकता है बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा x रेज़ टू द पावर 13 माइनस R -2R इंटू -2 रेज़ टू द पावर R। TR plus 1 दिस इज इक्वल टू 13CR इंटू -2 रेज़ टू द पावर R इंटू x रेज़ टू द पावर 13 माइनस 3R। अब हमने ऐसी टर्म फाइंड करनी है जिसमें x रेज़ टू द पावर -2 इन्वॉल्व हो रहा हो, तो यहाँ पे ये जो x है इसकी पावर में है 13 माइनस 3R, इसको पुट कर देंगे -2 के इक्वल। पुट 13 माइनस 3R इज इक्वल टू -2। अब इस इक्वेशन को r के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3R इज इक्वल टू -2 माइनस 13 माइनस 3R इज इक्वल टू -15। R हमारे पास आ जाएगा -15 ओवर -3 के इक्वल, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू 5 इज 15, सो R इज इक्वल टू 5। अब हम R को पुट कर देंगे 5 के इक्वल, तो हमारे पास आ जाएगा T6 दिस इज इक्वल टू 13C5 इंटू -2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू x रेज़ टू द पावर -2। अब यहाँ पे ये जो 13C5 है इसको एक साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 13 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल इंटू 13 माइनस 5 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू 13 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं
13 into 12 into 11 into 10 into 9 into 8 factorial over 5 factorial into 8 factorial. 8 factorial 8 factorial के साथ हो जाएगा कैंसिल. दिस इज इक्वल टू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 ओवर 5 factorial is 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 5 into 1 is 5, 5 into 2 is 10, 4 into 1 is 4, 4 into 3 is 12, 3 के साथ हो जाएगा कैंसिल और 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू 13 into 11 into 9 is 1287. अब हमारे पास T6 आ जाएगा 1287 minus 2 raised to the power 5 is minus 32 into x raised to the power minus 2. T6 is equal to 1287 into minus 32 is minus 41,184 और साथ आ जाएगा x रेज़ टू द पावर माइनस 2. तो 6 टर्म है जिसमें x रेज़ टू द पावर माइनस 2 इन्वॉल्व हो रहा है. सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सॉल्व कर लिया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 3 से कंटिन्यू करेंगे. मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.